Good morning, students. Welcome back to the class. Students, this class was off for a few days, but from today we are resuming it once again. And I hope in the meantime you have gone through all the topics already taught thoroughly and now are in a position to understand the further topics in a very clear manner. Students, so far we have studied about the spherical mirrors, and today I'm taking up with you is plane mirror. The reason why I'm taking plane mirror after the spherical mirror is that I want to explain plane mirror in terms of its focal length. And focal length का concept तभी आपको आता है when you have already done spherical mirrors. So how can we define a plane mirror? All of you have seen plane mirror in your daily lives. It is a thin, flat and smooth sheet of glass having a shining coating of silver metal on one side. So what is a plane mirror? Plane mirror is the mirror which you see when you get dressed up for your school, for your offices or wherever we go. Plane mirror is also called as a looking glass. The looking glass which we use for viewing our image is the plane mirror. And plane mirror, as it is very clear from the definition, it is a thin, flat and smooth sheet of glass having a shining coating of silver metal on the one side. तो जिस तरीके से आप spherical mirrors बनाते थे, the way you make spherical mirrors, मतलब जैसे आप एक कांच का गोला, मैंने आपको बताया था कि आप कांच का गोला लेंगे and you polish its outer surface to make it a concave reflecting surface and you polish it from inside to make it a convex reflecting surface. And for the plane mirror, what we have to take? We have to take a plain sheet of glass and we coat the one side of it with a silver paint and then we block that silver paint with a red color. Students, plane mirror को हम spherical mirror भी कह सकते हैं. How? Imagine करिए, जस्ट इमेजिन कि आपके पास स्फेरिकल मिरर आप कैसे बनाते थे. मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाते हैं. हम एक बड़ा सा कोई स्फीयर लेते हैं और उसके फिर हम स्लाइसेस काटते हैं, जस्ट लाइक वी कट द स्लाइसेस ऑफ लेमन और वाटरमेलन और एनी अदर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. तो उसी तरीके से आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्फेरिकल बॉडी है, इतनी बड़ी कि उसका रेडियस हम लोग कंसीडर करेंगे एज इनफिनाइट. क्या कंसीडर करेंगे? इनफिनाइट. एक इनफिनाइट रेडियस की आपके पास स्फेरिकल बॉडी है और अगर आप उसका एक स्लाइस कट करते हैं तो वो जो छोटा सा स्लाइस आप उसमें से कट करेंगे उसकी शेप कैसी होगी? ऑलमोस्ट प्लेन. कैसी होगी? ऑलमोस्ट प्लेन. सो हम यहां पर कह सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफिनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आप इसको कैसे प्लेन मिरर को रिलेट कर सकते हैं विद द स्फेरिकल मिरर कि प्लेन मिरर भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इस प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इनफिनाइट. मतलब कि आपने प्लेन मिरर को एक ऐसे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से काटा हुआ है जिसका रेडियस इनफिनाइट है. एंड चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाफ ऑफ द फोकल लेंथ. तो अगर किसी बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट है तो व्हाट अबाउट इट्स फोकल लेंथ? फोकल लेंथ भी इनफिनाइट होगी. क्या होगी? फोकल लेंथ भी इनफिनाइट होगी. सो प्लेन मिरर हैज इनफिनाइट फोकल लेंथ. This question has been asked so many times as 1 mark question in the previous year's question papers. तो आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the focal length of the plane mirror? The answer is infinite. क्या focal length होती है उसकी? Infinite. तो बच्चों, आज अब हम इसके बाद में आपके साथ शुरू करूंगी कि what is the type of image that is formed in a plane mirror. जो मिरर आप सुबह मॉर्निंग में स्कूल आने के लिए या कहीं पर जाने के लिए, तैयार होने के लिए यूज करते हैं, दैट मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर. एंड व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर. एज द चैप्टर विल प्रोसीड फर्दर, you will be able to know that there are 2 types of images. One is the real image and the other is virtual image. And in case of the plane mirror, the type of image that we get is the virtual image.
स्टूडेंट्स आज के चैप्टर में, आज के जो टॉपिक है उसमें मैं एक चीज आपको क्लियर करने वाली हूं, एंड दैट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट व्हाट आर एक्चुअली द वर्चुअल इमेजेस. Since the time we have been reading the chapter optics, it is a confusion in our mind that how the virtual images are formed. ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद I think you people will be in a position to understand the basic difference between the real image and the virtual image. So let us consider. So let's come to the point. This is a plane mirror. Plane mirror का देखिए एक साइड हमने पॉलिश करके रखा हुआ है, ये देखिए. I hope it is visible to all of you. Let's see. This is a plane mirror and plane mirror की एक साइड को हमने पॉलिश किया है. This is an object. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेन मिरर के सामने रखा है. What happens? यहां से हमारा एक इंसिडेंट रे आया. ठीक है, ये इंसिडेंट रे आएगी और कहां से रिफ्लेक्ट होगी? बिकॉज इफ इट इज अ angle of incident, according to the laws of reflection, you know, the angle of incidence will be equal to the angle of reflection. तो ये मेरा angle of reflection बन गया. ठीक है. Now for the formation of images we always need two reflected rays. ये भी मैं आगे आपको इसके बाद फिर से कराऊंगी. This is the second incident ray which is incident on the mirror at point B. ठीक है, तो आप देखिए ये रे भी क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आप देखो ये जो आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं, ये क्या इस साइड कभी मीट करेंगी? कभी मीट नहीं करेंगी, बिकॉज दीज आर द डाइवर्जेंट रेज. और जो रेज डाइवर्ज करती हैं वो इस साइड कभी भी मीट नहीं करेंगी, बट दे विल मीट. कहां मीट करेंगी? इफ वी प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड्स, कहां प्रोड्यूस होंगी? करेंगे हम इसको बैकवर्ड्स. दिस इज द पॉइंट वेयर दीज रेज विल अपीयर टू मीट, एंड एट दैट पॉइंट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट O है तो यहां पर क्या है? हमारी इमेज फॉर्म करेगी. नाउ देर आर फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर. पहला पॉइंट देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर. ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. जस्ट होल्ड ऑन दैट. आपने जो इमेज आपकी जो बनी है, जो ऑब्जेक्ट जो आपने मिरर के अंदर इमेज बनी है, वो इमेज आप तभी देख सकते हैं जब आप कहां देखेंगे? मिरर के अंदर देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड हियर. The image formed by a plane mirror can be seen only by looking into the mirror. तो आपको अगर सपोज अपने आप को ही उस मिरर में देखना है, तो अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको अपनी इमेज तभी नजर आएगी जब आप मिरर के अंदर देखोगे. Second point here is, if the screen can be a cardboard or a cloth is placed at the point I, no image would be formed here. This type of image which cannot be received on the screen is called a virtual image. इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाती हूँ. क्या होता है, सपोज अब आपकी इमेज यहां बन गई है. ठीक है, बेसिकली देखिए ये जो आपका मिरर था, इसकी दूसरी साइड ये क्या थी? दिस वॉज पेंटेड. ये जो एरोज होती है ना, ये जो छोटे छोटे आपके यहां पर मैंने ये शेड्स दिखाई हैं, ये जो आपकी लाइंस हैं, ये क्या शो करती है कि दिस साइड ऑफ द मिरर इज पेंटेड. तो जो साइड पेंटेड है वहां पे क्या लाइट जाएगी? नहीं जाएगी. लाइट क्या कर रही है? इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, इसके ऊपर फॉल कर रही है, यहां से टकरा के वापस यहां आ रही है. इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट के ऊपर फॉल कर रही है और यहां से टकरा के वापस जा रही है. एक्चुअली देयर इज नो लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, जब यहां पर कोई लाइट ही नहीं है तो हम कहते हैं कि यहां पर इमेज बन रही है. ये इमेज जरूर बन रही है, बट दिस इमेज इज नॉट अ रियल इमेज. Real image is formed when the two rays after reflection actually meet. क्या करती हैं वो? Actually meet करती हैं. लेकिन यहां पर ये actually meet नहीं कर रही हैं. ये हम क्या कर रहे हैं, इनको जब backwards produce कर रहे हैं तो यहां पर जाके ये meet कर रही है. They appear to meet. They appear to meet. अब एक चीज यहां पर समझने वाली है
कि ऑब्जेक्ट आपने सामने रखा है, ठीक है, और इमेज कहां बन रही है? इमेज ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर वेयर देयर इज एक्चुअली नो लाइट, वेयर देयर इज एक्चुअली नो लाइट डायरेक्टली, नो लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इमेज पॉइंट आई। यहां पर देखिए, अब एक बार फिर से आप इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगी कि यहां पर आपकी इमेज जो है, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पे बन रही है, वो इमेज आपको सिर्फ कब नजर आएगी? जब आप मिरर के अंदर देखोगे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के ऊपर कोई स्क्रीन रखते हो, कोई कार्डबोर्ड रखते हो, कोई शीट रखते हो, कोई कपड़ा रखते हो, तो आपको जो ऑब्जेक्ट आपने मिरर के सामने रखा है उसकी इमेज आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर कोई लाइट है ही नहीं है। आपको इस पॉइंट के ऊपर कोई लाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो वहां पर इमेज कैसे बनेगी? लेकिन हाँ, अगर ये पॉइंट मिरर के सामने होता, अगर ये पॉइंट कहां होता? मिरर के सामने होता, या ये वो पॉइंट होता जहां पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मीट की होती, तो अगर हम वहां पर जब वो कपड़ा रखते तो वो इमेज हमें उसके ऊपर ऑब्टेन हो सकती थी, वो इमेज वहां पर हमें मिल सकती थी। बट सिंस देयर इज नो लाइट एक्चुअली ऑन दिस साइड ऑफ द मिरर, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इमेज जरूर बनती है, और वो इमेज हमें कहाँ नजर आती है? वो हमें मिरर के अंदर देखने पर नजर आती है। और वो जो आप मिरर के अंदर देख रहे हो वो क्या है, वो मैं अभी आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। नो लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इमेज पॉइंट आई, कि इमेज पॉइंट आई से डायरेक्टली कोई भी लाइट जो है वो नहीं आ रही है। इट इज अज्यूम्ड, it is not the actual light which is coming from this point, but it is assumed कि यहां से लाइट जो है वो आपकी आंखों में फॉल कर रही है। आपका ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में अगर आप आंख रखेंगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर नजर आएगी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ है। वंस अगेन लेट्स सी, दिस इज अ प्लेन मिरर, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे ये जा रही है, एक इंसिडेंट रे ये जा रही है। दीज रेज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, लेकिन वो इस साइड पे वो कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं। अगर हम उनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो लगता है कि यहां पर जाकर के ही मीट करती हैं। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, ठीक है, दैट पॉइंट इज कंसीडर टू बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आई। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। It is only the light reflected from the mirror which appear to be coming from the image point I, ठीक है। तो जो आपको अपना चेहरा, अगर आप सपोज अपना चेहरा मिरर में देख रहे हैं, तो जो आपको वो इमेज नजर आ रही है वो सिर्फ एजम्पशन है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? उस पॉइंट से आ रही है जो बेसिकली कहाँ पर है? मिरर के पीछे, ठीक है। इट अपीयर टू कम। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए, कि कैसे वर्चुअल इमेज बन रही है और इसको वर्चुअल क्यों बोला जा रहा है, उसको समझने के लिए मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली हाउ कैन वी सी दी ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, ठीक है। उससे पहले व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स है क्या? इन द स्टडी ऑफ लाइट द टर्म ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट। जो भी कोई चीज लाइट देती है, चाहे वो उसकी अपनी लाइट हो, whether the light is of it, if light is of its own, or it is the light which falls from some other object on it and the object reflects it, ठीक है। मतलब कि चाहे वो ऑब्जेक्ट की लाइट अपनी लाइट हो, या वो लाइट दे रहा है जो लाइट उसके ऊपर दूसरी चीजों से पड़ रही है। So there are two types of objects. One type of object is luminous objects. What are the luminous objects? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। Luminous objects are the objects which have the light of their own. For example, sun, candle, bulb, etc. are the examples of the luminous objects. And what are the non-luminous objects? The objects which do not have the light of their own, but they reflect the light which falls on it from some other source. उनको हम कहते हैं non-luminous objects. So most of the objects that we see around, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, those are the non-luminous objects. ठीक है? Now the next line is, we can see the objects directly or after getting reflected or refracted by some surface. तो हम या तो ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली देखते हैं, या हम
तब देखते हैं जब कोई लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है और वो ऑब्जेक्ट सम ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वॉन्ट टू सी अ बर्ड. ठीक है, हम एक बर्ड को देखना चाह रहे हैं. तो जब आप किसी चीज को देखना चाहते हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो कोई रॉक हो, चाहे कोई माउंटेन हो, चाहे कोई ट्री हो, क्या होता है कि द लाइट फ्रॉम द सन और सम अदर सोर्स फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट. जब वो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है, दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्प्रेड्स आउट लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस. ठीक है, हर डायरेक्शन में लाइट को स्प्रेड करता है. एंड when some of the light rays are intercepted by your eyes, जब उसमें से कुछ लाइट रेज आपकी आंखों के अंदर इंटरसेप्ट करती हैं, आपकी आंखें उसको रिसीव करती हैं, तो वो लाइट रेज क्या करती हैं, अपने साथ जो वो डाटा लाती हैं अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, वो जो लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है, वो अपने साथ उस ऑब्जेक्ट की शेप, कलर, उसके अंदर क्या पैटर्न है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करती है. जैसे ही वो लाइट आपकी आईज में फॉल करती है, आपकी आई का जो विजुअल सिस्टम है, जो हमारा आई एंड ब्रेन का जो विजुअल सिस्टम है, वो ट्रिगर हो जाता है. ठीक है, तो आप जो भी वो इमेज होती है, वो आप जो ऑब्जेक्ट आपने जहां से लाइट निकल के आ रही है, चाहे वो उसकी अपनी लाइट है, चाहे वहां से वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, जैसे ही वो लाइट रे आपकी आंख में एंटर करती है, उसकी इमेज जो है वो आपके रेटिना पर फॉर्म हो जाती है. एंड द प्रोसेसिंग जो है वो ब्रेन करता है, एंड द रियल पिक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज सीन बाय यू. ठीक है, तो आपका विजुअल सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है विद द, जो आपने लाइट वहां से आई उसको इंटरसेप्ट किया, देन योर ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन बीइंग कैरिड अवे बीइंग ब्रॉट विद दैट लाइट रे, और फिर वो जो आपकी प्रोसेसिंग के बाद जो वो इमेज बनाती है, देन वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. तो हमें फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आता है. तो सवाल ये है, क्वेश्चन अराइजेस हियर, कि क्या हम ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ डायरेक्टली ही देखें तो हमारा विजुअल सिस्टम एक्ट करता है? नो. Suppose we want to see a bird, light from the some source fall on a bird, and some of the light is spreading from the bird must be intercepted by your eyes and redirected into the retina of your eye. तो आई होप कि ये लाइंस का मतलब आपको समझ आया होगा कि क्या होता है कि जैसे ही कोई लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है, जो इन्फॉर्मेशन वो लाती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद रेटिना पर आपको उसकी इमेज मिलती है, जिससे कि आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज या उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली देख सकते हैं. तो क्या ये विजुअल सिस्टम सिर्फ तभी एक्ट करता है जब आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? नहीं, ये विजुअल सिस्टम तब भी एक्ट करेगा जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय सम रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टेड बाय सम रिफ्रैक्टिंग सरफेस. Here we are confined with the reflection process only, so we'll talk about the mirrors only. ठीक है, तो देखिए डायग्रामेटिकली क्या है. ये सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. यहां से ये लाइट रेज हर डायरेक्शन में इसके ऊपर, पहले तो सन से इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, देन ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रेड कर रहा है लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस. सपोज आपने ये जो दो रेज हैं ये आपके आंखों के रेटिना पर फॉल करती हैं, तो आपको ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहां पर इस जगह पर आपको नजर आएगा. यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट एट दिस पोजिशन. सो इसको मैंने मार्क किया है, दिस इज आईज इमेज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर. सो फार आप भूल जाइए कि देयर इज एनी मिरर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, हम भूल गए कि यहां पे कोई मिरर नहीं है. अभी तक हमने मिरर के बारे में कोई बात नहीं की है. अब हम क्या करते हैं कि इसके सामने एक मिरर रख देते हैं. ठीक है, अब हम डायरेक्टली, हमारी आंख अगर ये है, ये डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रही थी, अब हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे,
अब हम कैसे देख रहे हैं, अब हम इसको देखेंगे आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, ठीक है। यानी कि अब यही रेज, ये रेज जो है जो इधर जा रही थी, अब मैंने यही एक रे ली और इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट करवाया। इसी ऑब्जेक्ट से ये रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये आया और ये आया, ठीक। तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये यहां पर तो कहीं भी मीट नहीं करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द रेज विच आर डाइवर्जेंट दे नेवर मीट, ठीक है। सो बट व्हेन वी प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स दे विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट विच इज कॉल्ड द आई पॉइंट, दैट इज विच इज कॉल्ड द इमेज पॉइंट। तो यहां पर आपको इसकी इमेज मिलेगी। जब आपने अपनी आंख को यहां रखा था और विदाउट रिफ्लेक्शन आपने देखा था तो ऑब्जेक्ट आपको उसी डायरेक्शन में नजर आया जिस डायरेक्शन से लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही थी। अब देखिए, अब लाइट आपकी आंखों में किस डायरेक्शन में एंटर कर रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट वही नजर आएगा जहां से लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी। सो आपको पता होगा कि हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है, वी हैव अ लेंस इन आवर आईज, ठीक है। तो आपकी आंखों के लेंस के लिए, ठीक है, ये जो आई पॉइंट है ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपकी आंखों में जो लाइट अब एंटर कर रही है वो इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली नहीं कर रही है, वो कहां से कर रही है, इस पॉइंट से एंटर कर रही है, इमेज से आके आपकी आंखों में वो लाइट आ रही है। सो फॉर योर आई, फॉर द लेंस ऑफ योर आई, दिस आई इज एक्टिंग एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसका काम कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जो है वो लेंस बना रहा है एंड यू आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर एट दिस पॉइंट। तो इस एरिया में आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर नजर आएगी। अब आपकी आंखों में जो लाइट एंटर कर रही है वो इस पॉइंट से नहीं आ रही है, वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली नहीं आ रही है, वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट से स्प्रेड होकर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में एंटर कर रही है। बट अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वर्चुअल ये ऑब्जेक्ट है, ये जो आई पॉइंट है, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो लाइट, बट इट एग्जिस्ट वेरी मच विद इन योर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करता है, और जो चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती और हमारी ब्रेन में हम उसे परसीव करते हैं उसे हम वर्चुअल कहते हैं। दैट इज वाई द नेम वर्चुअल इज गिवन टू दिस ऑब्जेक्ट। द image of imaginary image of this object is eye, and eye is serving as the virtual object for the lens of your eye, retina, जहां पर इसकी इमेज फॉर्म करती है, और वो इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज, और हमें वो चीज वहां पर या रिफ्लेक्शन के थ्रू इस मिरर में नजर आती है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अबाउट द वर्चुअल इमेज, कि वर्चुअल इमेज एक्चुअली होती क्या है। वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप उस ऑब्जेक्ट को देखिए, या आप उसको किसी मिरर के साथ रिफ्लेक्ट कराकर उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर के अंदर देखिए। तो जो चीज आप मिरर के अंदर देख रहे हो, जिसको आप मिरर के अंदर देख रहे हो, वो आपकी आंखों के लिए एक्ट कर रही है एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो आपकी आंखों के लिए क्या एक्ट कर रही है, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट आपकी आंखों में उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से एंटर कर रही है और उसकी इमेज आपकी आंखों के लेंस पर, यानी आपकी आंखों की लेंस के द्वारा आपकी आंखों के रेटिना पर फॉल कर रही है, जिसकी वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा है। तो दिस इज द वे हाउ द पर्सन इज एबल टू सी द वर्चुअल image in a plane mirror, but you cannot capture the virtual image on a screen. This thing you people will be able to learn later on, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ कि वर्चुअल इमेज क्या है। नाउ let's come to the important points about the plane mirror, ठीक है। इमेज formed by a plane mirror is virtual, ठीक है। जो भी इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो वर्चुअल होती है, आपको समझ आ गई। अब अगर आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। Here we have taken the point source and now I am going to take the extended source. What is an extended source? Extended object जो होता है, it is a combination of
नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंबाइन करते तो हमारा क्या बनता है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे कि यहां से हम लोग ये मैंने एक इंसिडेंट रे ली, ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दिस रे आई एम टेकिंग नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल आएगी। सो जब मैं इसको बैकवर्ड्स इन दोनों रेज को ज्वाइन करूंगी तो हेयर वी विल गेट द इमेज। इफ दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज, ठीक है। दिस इज वर्चुअल as well as erect. Erect means if the arrow of an object is upside, the arrow of the image will also be upside. ठीक है, तो this kind of image is known as erect image. तो image formed by a plane mirror is virtual, erect, and it is of the same size. Look at the size. जितना size object का है उसी size की क्या है, image है, ठीक है। And the most important thing here is to नो कि जितना डिस्टेंस मिरर का ऑब्जेक्ट से होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है। इफ द इमेज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द प्लेन मिरर, द इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मीन्स हेयर u इज इक्वल टू v। फॉर द प्लेन मिरर u इज इक्वल टू v, ठीक है। Why I am doing it hurriedly? Because in your syllabus it has been given that you have to get only the idea about the plane mirrors. But I have seen many times that 1 mark question from the plane mirror usually comes in your exams. So these are few points from where you people will be able to answer those 1 mark objective questions. ठीक है। Image formed by a plane mirror is laterally inverted. That is, right side of the object appears on the left side of the image and vice versa. For example, if you see the object like red, if you are holding a play card written a red on it and you hold it in front of the mirror, what you will view in the mirror, the red where it is in the object it is written on the right hand side, but here it goes on the left hand, here it is left hand side and here it goes on the right hand side. So all the letters are laterally inverted, sideways inverted. वो क्या हो जाता है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट बन जाती है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट बन जाती है। If now the third point is, if there are two plane mirrors perpendicular to each other, then the ray of light after suffering reflection from both the mirrors become anti-parallel. Means कि अगर आपके पास 2 plane mirrors है और उसको आपने perpendicularly लगाया है तो ये रे इसके ऊपर पहले यहाँ से इंसिडेंट होगी, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट बनेगी और यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। मीन्स कि जो इंसिडेंट रे एक मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई थी, जब वो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होके बाहर जाएगी तो दे विल बिकम क्या, एंटी पैरेलल, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू 2 मिरर्स, ठीक है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो क्या होगा, if the 2 mirrors are perpendicular to each other, then the ray of light after suffering reflection from both the mirrors become anti-parallel. तो एक रे जब इसमें एंटर करेगी, पहले एक मिरर से रिफ्लेक्शन सफर होगी, फिर वो दूसरी मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, और जब वो वापस निकलेगी दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में एंटी पैरेलल हो चुकी होगी। Now the fourth point is, if the 2 plane mirrors are held parallel to each other, अगर आपके पास 2 plane mirrors है और उनको आपने parallel रखा हुआ है, तो how many images will we get? We will get infinite number of images. तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 मिरर्स को हमने पैरेलल रखा है तो कितनी इमेजेस जो हैं वो हमें मिलेंगी, हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी। एंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द 2 मिरर्स विल बी एट d डिस्टेंस अपार्ट, और उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन इमेजेस होंगी उनके बीच में डिस्टेंस होगा 2x d,
कितना होगा, ट्वाइस डी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक, मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी समझाती हूँ कि आपके पास 2 मिरर्स हैं, उसके बीच में आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस पहले मिरर से भी डी है और दूसरे मिरर से भी डी है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, जो पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होगा, इमेज उतनी ही उसके पीछे बनेगी। तो अगर हम ये पहला मिरर कंसीडर करें, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये डी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इमेज किस डिस्टेंस पे मिलेगी हमें, पीछे डी डिस्टेंस पे मिलेगी, ठीक है। अब हम ये वाले मिरर पे आ जाते हैं। ये मिरर के आगे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कितने डिस्टेंस पे है, डी पे। तो इसकी जो पहली इमेज मिलेगी वो हमें कहाँ मिलेगी, वो भी डी डिस्टेंस बिहाइंड दिस मिलेगी, ठीक है। अब ये वाला मिरर ले लो, ठीक है, दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। मैंने मिरर 2 के लिए अब ये जो I1 है, क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो कितना है, यहां से ये डी और ये डी कितना हो गया, 2D, और ये कितना हो गया, 3D। तो ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर के 3D डिस्टेंस आगे है, तो इमेज भी कहां होगी, 3D डिस्टेंस पीछे। डी यहां तक है, तो यहां तक कितना हो गया, 2D। तो यहां पे आपको इमेज मिली, कहां मिली, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऑब्वियसली यहां तक डिस्टेंस अगर डी है, तो जो बाकी बच गया वो कितना होगा, 2D। सेम इज द केस विद दिस मिरर। इस मिरर के लिए ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये इसके कितना आगे है, ये डी और ये भी डी, कितना हो गया, 3D। अब 3D है तो ऑब्वियसली इमेज कहां होगी, इसके 3D पीछे। यहां तक डी आ गया, तो 2D डिस्टेंस और लेंगे, तो वहां पर हमारी इस मिरर के द्वारा सेकेंड इमेज बन जाएगी। इसी तरीके से एट सो ऑन पॉइंट्स हम इसको करते जाएंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लेट अस कम, इफ द टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। कि अब पहले हमने परपेंडिकुलर की बात की, परपेंडिकुलर में वो रेज जो है वो एंटी पैरेलल हो जाती हैं, और प्लेन मिरर्स में हमने बात की तो प्लेन मिरर्स में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। अब अगर हमारे पास 2 मिरर्स हैं और उनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर हियर बिटवीन देम। तो बताइए कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिलेंगी। तो ये डिपेंड करता है थीटा पर। अगर हमारा ये दिस नंबर m इज कॉल्ड एज 360 डिग्री, ये वैल्यू निकलती है हमारी जब हम 360 डिग्री को थीटा के साथ डिवाइड करते हैं। सपोज कि हमारी ये जो m वैल्यू है ये आपकी इवन वैल्यू आती है, और ये इवन कब आएगी, सपोज मैंने यहां पर एक वैल्यू लिखी है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है, तो 360 डिग्री को हमने डिवाइड किया 60 के साथ, तो m कितना आया, 6। तो ये m जो है वो कितना आ गया हमारा, 6। तो n, the number of images being formed by the two mirrors which are kept at an angle theta with each other is equal to 6 minus 1 is equal to 5, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, n इज इक्वल टू m माइनस 1 फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन ये नंबर m जो है वो किसके बराबर होगा, इवन। एंड व्हाट इज m इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। सपोज अब अगर आपका ये जो m नंबर है ये क्या आता है, ऑड नंबर। ये पहले से ही थीटा की वैल्यू ऐसी है कि जब हम 360 डिग्री को थीटा के साथ डिवाइड करते हैं तो वो m हमारा ऑड नंबर आता है, तो उतने ही नंबर की इमेजेस यहाँ पर हमें मिलती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कि अगर ये जो फ्रैक्शन है हमारी, ये जो m है ये एक फ्रैक्शनल नंबर आता है, तो कोई भी ऐसा नंबर थीटा का जब हम 360 डिग्री को इस थीटा के साथ डिवाइड करें और अगर हमें वो फ्रैक्शन आए, सपोज इट इज 4.8, तो इसमें से जो इंटीजर पार्ट होगा दैट वो इंटीजर पार्ट डिसाइड करेगा कि हाउ मेनी इमेजेस आर बीइंग फॉर्म्ड बाय दीज टू मिरर्स हेल्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर। तो यहां से इंटीग्रल वैल्यू इसमें से 4.8 में से जो इंटीजर हुआ उसे पिक करेंगे हम, 4 है तो इसलिए 4 नंबर मतलब 4 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे ये जल्दी से ये कवर करना था, तो मैंने ये आपको बता दिया। आई विल बी सेंडिंग यू द रिटन नोट्स ऑफ दिस, जो भी मैंने ये शीट्स यूज की हैं ड्यूरिंग दिस लेक्चर, आई विल सेंड यू अलोंग विद दिस लेक्चर। आपने एक काम करना है, जो भी ये है मटेरियल इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न इट लेटर ऑन, और यू विल बी एबल टू रेफर टू दीज पॉइंट्स फॉर योर फर्दर यूज, ठीक है। अगर आप ये चीजें नोट नहीं करेंगे, अभी आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया, बट आफ्टर सम टाइम दे विल फेड अवे।
वो चीजें भूल जाती हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो इससे आप जो भी मैं ये शीट्स भेजूंगी, आपने ये शीट्स अपनी कॉपी के ऊपर जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है आप लिख लीजिएगा वैसे ही। तो जब अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो लेटर ऑन व्हेनेवर यू विल be going through these pages, you people will be understand the concept which I have done with you today. ठीक है? So thank you. Till my next lecture. Goodbye. Take care. Stay home. Stay safe.